हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस फोटो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में आपको बताने वाला हूँ एब्जॉर्प्शन के दो लॉज होते हैं। पहले वीडियो में आपको लैम्बर्ट्स लॉ बता चुका हूँ और इसमें हम बीयर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली जो ये बीयर्स लॉ है ये नंबर वन ये बीएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीएससी अगर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की बात हो तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में बीएससी ये फिफ्थ सेम के लिए काफ़ी यूज़फुल है केमिस्ट्री में। और इसी तरीके से एमएससी थर्ड सेम में हमारा फोटो केमिस्ट्री का एक अलग पेपर होता है। तो फोटो केमिस्ट्री में बेसिक लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसका स्टेटमेंट, इसका इसका डेरिवेशन और क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये मैं इसमें बताने वाला हूँ। और ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट की परीक्षा हो या गेट की परीक्षा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बीएस लॉ, दिस लॉ states that this law states as, suppose you have your solution and this solution consists of solute and solvent, as you know. Suppose this is I naught or I zero, original intensity. This is the intensity after passing through this absorbing medium. Suppose its concentration is C. C is the concentration and X is the thickness. Okay, so statement what is the statement of this law? This law states that when a beam of monochromatic light is passed through a solution so the decrease in intensity of light with the thickness of the absorbing medium, with thickness is X, with thickness of the absorbing solution is directly proportional to not only to the intensity of the absorbed light, but also
but also to the concentration of the solution, but also to the concentration of the solution. Okay, so this is the statement. This law states that when a beam of monochrome light is passed through a solution, so the decrease in intensity of the light with thickness x of the absorbing medium or absorbing solute or the solution is directly proportional not only to the intensity of the incident light but also to the concentration of the solution. This law is known as Beer's law. ओके, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट है. नाउ नाउ द डेरिवेशन, now derivation of this law may be written in form minus bi upon dx. Minus sign indicates that the intensity is decreases, so minus di upon dx is directly proportional to I into concentration C, because C is the concentration of the solution, I is the light. This is equation number 1, or this equation may be written as minus di upon dx is equal to, suppose, constant epsilon I into C. This is equation number 2, where epsilon, it may be read as epsilon, epsilon, epsilon. Okay, so epsilon is a proportionality constant. Proportionality, the proportionality constant, which is called as equal to, proportionality constant is called as absorption coefficient. Absorption coefficient, but you know here C is the concentration, suppose it is 1 mole, so you can write molar absorption coefficient or molar, okay, simply molar absorption coefficient only. ठीक है, molar absorption coefficient और molar molar absorption coefficient or molar extinction coefficient. Okay, now epsilon is the molar absorption coefficient or molar extinction coefficient, and C is the concentration. Now the very important question generally asked in this point. Now this epsilon, basically the value of epsilon, it depends upon the nature of absorbing solutes, जो सल्यूट होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, एंड wavelength of wave length, LENGTH, wavelength of light used. तो जो लाइट
यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, और जो एब्जॉर्बिंग सल्यूट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार नेट में और गेट की परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, सो नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 है, और सपोज यहाँ ये हो गया a, तो x इक्वल टू हियर यहाँ पर 0, x इक्वल टू a दिस पॉइंट। ओके, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग equation 2 between the limits x equal to 0, यहाँ और x equal to a, and intensity I equal to I naught to I. तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड इंटेंसिटी I इक्वल टू I0 टू I। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन 2 तो हमें मिलेगा, तो हमको मिलेगा इस प्रकार से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में। तो हमारा जो है ये हो गया, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that minus di upon dx is equal to epsilon I into x, sorry, epsilon I into c। ओके, सी हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ दिस और दिस इक्वेशन में बी रिटर्न इन अनदर फॉर्म, di upon I is equal to epsilon, इधर आ जाएगा epsilon c dx, इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको लिखें, सॉरी, डी आई अपॉन, हाँ ठीक है, तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस एप्सिलॉन सी डी एक्स, ठीक है, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसको चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन, ये आई इक्वल टू I0 टू I, और यहाँ होगा x इक्वल टू 0 टू x। ओके, so therefore its log will be log of base e I, log base e I upon I naught, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये कितना होगा, ये होगा माइनस एप्सिलॉन सी इंटीग्रेशन dx x इक्वल टू 0 टू x मीन्स x, ओके, epsilon cx, or this equation may be written in other form in e to the power, so I upon I naught is equal to e to the power minus epsilon cx, okay, or I is equal to न्यूमरेटर, जिसे डिनोमिनेटर में एक ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore I will be I is equal to I naught into e to the power minus epsilon c x, okay, I equal to I naught into e to the power minus epsilon c x. So actually this equation number 4, and this equation represents how the intensity of the light I0 is reduced to I on passing through a thickness x of the solution of concentration C. So you have to write, you must write equation 4 represents how the
this equation represents how the intensity how the intensity intensity of light or the intensity of the light, original light I0 is decreases is DE-CRES is decreased, how the intensity of light I0 is decreased to I on passing through on passing on passing through a solution of thickness or THICKNES of thickness X and concentration and concentration C of the solution. ओके, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन ये बताती है कि इंटेंसिटी I0 किस तरीके से आई में चेंज होती है, यानी डिक्रीज होती है इंटेंसिटी का जब वो मोनोक्रोम लाइट जो है सॉल्यूशन जिसकी कंसर्न सी है और उसका थिकनेस एक्स है उसमें पास करती है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 ये यहाँ पर बताती है. Now further we can say that, or we can use from equation, we have equation, it is equation number 5, and we can take this equation also. Okay, suppose this equation is also चाहे तो 4 कर सकते हैं. Suppose this is equation number 4. Okay, this is equation number 5. ये अगर रहने दीजिए, ये equation number 3, this is equation number 4, no problem. Now you can take this equation. Okay, suppose this is a new equation, suppose A star, no problem. So now again we can use from equation A star, we have log of base E I upon I naught is equal to minus epsilon Cx. और अब क्या होता है देखिए, ये log बेस ई में है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना. ओके, सो नाउ कन्वर्टिंग दिस लॉगरिथमिक into log base 10, we will get 2.303 log base 10 I upon I naught is equal to minus epsilon Cx, or further it may be written as log I upon I naught is equal to minus epsilon Cx upon 2.303. Okay, 1.2.303. So therefore I upon I naught is equal to I upon I naught will be minus epsilon dash Cx upon epsilon dash Cx. ओके, epsilon dash Cx, और इसको इतना ही रहने देते हैं. Therefore log base 10. क्लियर, तो ये log base 10 I upon I naught इक्वल टू इतना, और इसको epsilon dash कहते हैं. epsilon dash इसको हमने, ये जो फैक्टर है ये वाला, इसको हमने epsilon dash लिया, where epsilon dash is equal to
एप्सिलॉन अपॉन 2.303. Okay, this is the constant. Okay, is called, this is called epsilon dash equal to this is called molar absorption coefficient, COEFF coefficient, molar absorption coefficient और molar absorptivity और इसके नाम है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी आप कह सकते हैं, एंड सिमिलरली यू कैन से इट इज नोन एज मोलर एक्सटेंशन, EXTINCTION, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, CFFI कोफिशिएंट, CIENT. ओके, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एप्सिलॉन नॉट को, ये मोलर एक्सटेंशन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है. ठीक है, BSc और MSc में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कई बार पूछा जाता है एप्सिलॉन डैश की वैल्यू बताइए. तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये पूछे जाते हैं. सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, वहां हमने 4 इक्वेशन लिया था, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ देयरफॉर इक्वेशन 5 फर्दर may be written in other form, I अपॉन I नॉट विल बी, ये बेस 10 है तो चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस एप्सिलॉन C इंटू एक्स, और I इक्वल टू I नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस एप्सिलॉन C एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई. क्लियर? तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 6 हो गई. इक्वेशन नंबर 6. अब हम आगे चलते हैं. अब इसके बाद ये इक्वेशन जो हमारी है वो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिल गई हमको इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ physical significance of मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का फिजिकल भौतिक महत्व क्या है. मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट CIENT. ये तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है. और इसका क्या एक्सटेंशन कोफिशिएंट है यहाँ से लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन थी, अगर हम यहाँ देखें ये वाली इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन है आपका, अगर हम लें इक्वेशन 5, इक्वेशन लिखता हूँ इस फॉर्म में, तो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट हमारे पास है log बेस 10 I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन CX, ये होता है इसकी वैल्यू. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, और इसको अगर लेफ्ट लाएंगे तो माइनस एप्सिलॉन CX इज इक्वल टू log बेस 10 I अपॉन I नॉट, और एप्सिलॉन डैश यदि ले लें तो एप्सिलॉन डैश को भी माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन CX हो जाएगा, चला जाएगा उधर, इंटू log बेस 10 I अपॉन I नॉट. ओके, अब मैं इसको पॉजिटिव में कर दूं, माइनस से पॉजिटिव, देयरफॉर एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटू एक्स log, ये उल्टा हो जाएगा, I0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और I नॉट अपॉन ये हो जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, 6. सपोज इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 होना.
ठीक है, फिर आगे चलते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 के बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यदि हम कंडीशन ले लें, ये हमारे पास इक्वेशन है 7, यानी एक्सटेंशन कोफिशिएंट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पर कंडीशन हमारा हेडिंग होगा, कंडीशन हम ले लें, ठीक है। कंडीशन इफ आई टेक, यदि मैं लेता हूं आई टेक C इक्वल टू 1 मोलर, 1m, 1 मीन्स 1 मोलर, यदि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं, 1 मोल, C इक्वल टू 1 मोल, एंड द वैल्यू ऑफ दिस log I0 एंड log I0 या I0 अपॉन I, जो भी आप कहें, इक्वल टू 1 ले लूँ। if I take C equal to 1 and log, so now put this value in equation 7 में रख दीजिए। okay, now substituting all the values of concentration and log I0 upon I in equation 7, we get my dear students epsilon dash equal to 1 upon C, 1 होगा, this is 1, so 1 into x log, हाँ ये पूरे की वैल्यूज हैं, इसकी पूरे की वैल्यू हम 1 मान चुके हैं, पूरे की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 ये भी मान दिया, सी की 1 मान दिया, यहाँ पर 1 इंटू एक्स, इसकी पूरी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, सो वी गेट एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है 1 इंटू एक्स, 1 इंटू 1, सो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन एक्स, तो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू ये आ गई 1 अपॉन एक्स, यानी एप्सिलॉन डैश क्या है, 1 अपॉन एक्स, बट यू नो, बट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए, बट इसको 2 मान लीजिए, बट log I0 अपॉन I इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली है। अब इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब ये वैल्यू हमारे पास 10 होगा, है ना, क्योंकि सारे बेस ये जितने भी हैं ये सब लॉग बेस 10 में है, जितने भी हैं ये सब लॉग बेस 10 में है, तो इसकी वैल्यू तब होगा लॉग 10 बेस 10 I0 upon I equal to 1, this value will be when I0 upon I will be 10, okay, the value of log base 10 I0 upon I will be 1 only when the value of I0 upon I equal to 1, ये तभी 1 होगा जब ये इसकी वैल्यू क्या होगी 10, क्यों, बिकॉज अगर ये 10 होगा तो क्या होगा, बिकॉज log 10 बेस 10, यानी log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, इतना आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो इट मीन्स फर्दर हम यहाँ से ये नोट कर सकते हैं, तो हम इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो इस प्रकार से यहाँ से इक्वेशन को यहीं पर हल कर लेते हैं, देयरफॉर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको यहाँ पर, तो I को 10 से मल्टीप्लाई, 10I विल बी I0, और देयरफॉर I अगर मैं यहाँ से निकालूँ, देयरफॉर I विल बी कितना होगा, I0 अपॉन 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, मोलर एक्सटेंशन कुछ नहीं है, मोलर एक्सटेंशन क्या है, एप्सिलॉन डैश इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी थिकनेस का रेसिप्रोकल, ठीक, एक्स, और कब थिकनेस का रेसिप्रोकल है, लेकिन होता क्या है, जो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है आई, वो क्या होती है, ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/10 रिड्यूस होती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपली वी कैन से दैट मोलर एक्सटेंशन, फाइनली इट माइट हैव बीन कंक्लूडेड दैट
Molar extinction coefficient is nothing. Molar extinction coefficient is the reciprocal of thickness x of the solution layer whose concentration is 1 molar. Molar on which reduce the intensity of light when passing through this solution reduced to 1/10 of its initial value or incident light I naught. Okay, so now we can write the definition of molar extinction coefficient. So definition of molar extinction molar extinction coefficient molar extinction coefficient may be defined as the reciprocal